Hello students, good morning. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. So students, in your previous classes, you have studied about the chapter sets. Now, I will continue this chapter again. So students, today we will talk about some type of set which universal set. Universal set. Now students, what is a universal set? Universal set is a set which contains all the elements under consideration in a given problem is called universal set. Universal set. It is denoted by generally capital U or Xi or S. So student, what is a universal set? The means of universal set is you have given a problem. Suppose you have a problem which contains some set. Suppose you have a problem which contains some set. So you have to find a set such that set has contains all elements of the given problem. Means if you have a problem which contains some set, then you have to find a set which is the superset of all sets which is present in the given problem. So now a new definition of universal set exists. It is so simple, a set which is the superset of all the sets which are present in a given problem is called universal set. Suppose students, now you can understand by this universal set by an example. Suppose I am taking an example. I am taking some sets. Suppose a set capital A equal 1, 2, 3, 4. Again, and a set B 6, 7, 8, 9. Suppose I am taking a problem which contains two sets A and B. A set is 1, 2, 3, 4 and B set is 6, 7, 8, 9. Now, question arises that what is the universal set for this problem? I have to find universal set for this problem. So students, now concentrate. You have to check how many sets are there exist in this problem. In this problem, there exist two sets A and B. So according to the definition, I have to found a set. I have to found a set such that which contains the element of A and element of B. So universal set of this problem A U equal what? We have to find a set U which is called universal set
that contains element of A and also element of B. So this is very simple. We can take U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suppose I have take U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you can observe that U contains element of A and U contains element of B. Simple. It is so simple to find. We can change U. If I take U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then this U is also a universal set because this U contains element of A and this U contains element of B. So result is that in a given problem there exist many universal sets. I think you can understand if I take this problem A equal 1, 2, 3, 4 and B equal 3, 6, 7, 8, 9. I have taken two sets in this problem and I have to ask you universal set of this problem. Then you have to generate a set which contains element of A and element of B. Then I take a set U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is also U contains the element of A and U contains the element of B. We can also say that A and B is generated by U. You have earlier studied about subsets and supersets. I can say that U is the superset of A and U is the superset of B. So second definition is a set which is the superset of all the sets which are present in a given problem. So in this problem I have taken two sets and I have generated a universal set U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This universal set U is the superset of A and this universal set of U is the superset of B. So I can take this U as universal set according to this problem. If I take U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then this is also the superset of A and B. Suppose I have taken another example. Students, universal set is generally denoted by U or giant. This symbol is made by giant or S. Suppose I have taken another example. Now, if I take A equal 1, 2, 3, B equal 4, 5, C equal 6, 7, 9. In this problem, I have taken three sets. Now, I want to ask you, what is the universal set for this problem? What is the universal set for this problem? Universal set may be different more than in a problem there exists more than one universal set. So you have to think about a set which contains element of A, element of B and element of C. That is called universal set for this problem. So then if I take U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If I take U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then you observe, then U contains the element of A, U contains the element of B, U contains the element of C. This element 7 is extra, but it does not matter. You have to construct a new set which contains every element of the set which are present in the given problem. I have taken
three sets in this problem, capital A, capital B and capital C. And I want to ask you what is the universal set for these three sets. So I have to generate a new set U such that U contains the element of A, the element of B, the element of C. So I generate U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 such that U contains element of A, U contains element of B, U contains element of C. If you take U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then this U is also universal set for this problem. So you have observed that in a given problem there exist many universal sets. I think you can understand this topic. Universal set is the superset of all sets in a given problem. Suppose I have taken U equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then I observe that U is the superset of A, U is the superset of B, U is the superset of C. Then U is called universal set. It is also denoted by xi. This symbol is xi or S. Now students, let's move on next topic. Our next topic is subsets of real numbers. Subsets of real numbers. Subsets of real numbers. Now, before I have discussed about the subset of real number, I have to tell you about real numbers. What are real numbers? What are real numbers? The set of all rational as well as irrational number is called real numbers. You already have studied this topic real numbers in earlier video of this chapter set. Now what is the real numbers? Real numbers means the set of rational numbers or irrational numbers. Means you have to take any rational number or irrational number. Then any rational number or irrational number is said to be real numbers. This is the very simple definition. If you take rational number, then it is a real number. If you take irrational number, then it is also a real number. Mathematical definition is the set of all rational as well as irrational number is called real numbers. Now, what is the subset of real numbers? Real numbers, subset of real numbers. Now, we have to take a number line. I think you have studied number line very well. This is the number line. This is the number line. Its midpoint is 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, and this is gone to minus infinity, and this one is gone up to plus infinity. This number line is said to be students real axis. Real axis. What is the real axis? Real axis is the x-axis. You have studied Cartesian plane in 9th and high school class. This is the x-axis. So I have to take x-axis, x dash O x.
O means 0. X dash OX is the called x-axis and this x-axis is called real axis. What is the subset of real numbers? So students, you are seeing this number line. This number line represents rational number as well as irrational number. Suppose I have to take 1. 1 is a rational. If I take root 2, root 2 equal 1.414. 1.414 is between 1 and 2. That is, this is root 2. This is also present in number line. So you can see that a number line contains rational number as well as irrational numbers. So students, what is the subset of real numbers? Subset of real numbers. Subset of real numbers. Subset of real numbers. Subset of real numbers. Subset of real numbers are called intervals. Students, this topic is very most important for your board class also. Subset of real numbers. What are the subset of real numbers? So students, answer is subset of real numbers are called intervals. What is the intervals? If I break this number line, if I will break this number line from 1 to 2. Suppose I have to break this number line from 1 to 2. That is, I have to separate a part 1 from 1 up to 2. Then this portion, this short piece of number line is called interval. This is the whole number line. If we cut this number line from 1 to 2, if I have to separate this portion from 1 to 2 from this number line, then this portion is called interval. Then this portion is called interval. So subset of real number means subset of real numbers are called intervals. Now, what is the type of intervals? Now I have to talk about the types of intervals. Types of intervals. Types of intervals. Students, generally intervals are of 4 types. 4 types generally. Generally, students, we have four types of interval. First type is closed interval. Closed interval. Second one is open interval. Third one is closed open interval. Closed open interval or semi-closed interval. Semi-closed interval. And fourth one is open closed interval. Open closed interval or semi-open interval. Semi-open interval. Now, I have to talk about closed interval, open interval, closed open interval or semi-closed interval, open closed interval or semi-open interval. So now students, move on to closed interval. The definition of closed interval is so simple. Let us take A and B. Small a and small b are two real numbers. Two real numbers.
such that A less than B. Students, interval means I have to take two real numbers. Let us take A, small a and small b are two real numbers such that A is less than B. A is less than B, then B is greater than A. So symbol of closed interval is, students, this large bracket. So I have to write open interval A to B. A to B means smaller to larger. A is smaller and B is larger. Then if I have to construct closed interval, then I have to put this symbol of large bracket, and inside this symbol we have to write first a smaller real number. So a smaller real number is A, comma, then larger real number. So student, this is very important thing, that in a interval, extreme left real number is smaller and extreme right real number is larger. So students, you have to understand this thing very clearly, that I have write interval 6, 8, then this is correct because 6 is less than 8. But if I write 8, 6 in closed interval, then this is wrong because extreme left number is less than extreme right number in interval. But in this case, extreme left number is greater than extreme right number. So this cannot be formed in interval, but this form a interval. Now, is this an interval? Yes, it is an interval because extreme left number is -8 and extreme right number is 6. -8 is less than 6. You also know that any negative number is less than any positive number. So this is an interval. So what is the meaning of closed interval A, B? Meaning of closed interval A, B means real numbers from A to B. Means I have to take A, I have to take B, and I have to take every real numbers between A and B. Means if I have to take this interval 6, 8 in closed interval, then I will take 6, I will take 8, and I will take any real number between 6 and 8. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्लोज्ड इंटरवल A, B है, उसका मतलब ये है कि A, B क्लोज्ड इंटरवल में है, इसका मतलब A से B तक की सारी रियल नंबर्स लेना है. A भी लेना है, B भी लेना है, और A से B के बीच की सारी रियल नंबर्स लेना है. So students, what is the set representation of a closed interval? Set representation of closed interval is X such that X belongs to R. This is the set vector form of closed interval. X such that X belongs to R. X is greater than or equal to A. X is greater than or equal to A, but less than equal to B. This is the set vector form of closed interval. Now, what is the open interval? So I have to talk about open interval. Open interval, symbol of open interval is just opposite of closed interval. This is the symbol of open interval, or this small bracket is the symbol of closed interval. You have to understand this symbol or this symbol relates open interval. Generally, this symbol is used mostly. So, definition is same. Let us take A and B are two real numbers such that A less than B. So, this symbol A, B or this symbol A, B represents open interval. Open interval means I
I do not include A and I do not include B. This is the difference. ओपन इंटरवल में मतलब क्या है कि अगर कोई ओपन इंटरवल A कॉमा B है तो आपको ना A इंक्लूड करना है ना B इंक्लूड करना है, A और B को छोड़कर, A और B को छोड़कर सारे रियल नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? रियल नंबर्स फ्रॉम A टू B नहीं होगी, रियल नंबर्स बिटवीन A टू B, मतलब A और B के बीच के सारे रियल नंबर्स ओपन इंटरवल में आएंगे। A से B तक के सारे तक और बीच, यही डिफरेंस है। अगर A से B तक की बात हो तो क्लोज इंटरवल, A से B के बीच की बात हो तो ओपन इंटरवल। अगर मैं A और B में किसी को भी इंक्लूड कर रहा हूं, अगर मैं A को इंक्लूड कर रहा हूं तो A की तरफ क्लोज इंटरवल का सिंबल लगेगा, अगर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो फिर ओपन इंटरवल का सिंबल लगेगा। सो नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन टू थर्ड टॉपिक, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल मींस this is the symbol of semi closed interval, this is the symbol of closed interval, this is the symbol of open interval, this is the symbol of semi closed interval, means it is closed from left side and open from right side. So students, what is the definition of semi closed interval? Definition is same but symbol is different. Semi closed interval means from a smaller number we have to apply large bracket. We have to apply large bracket in a smaller number and a small bracket in large number. We have to apply close large bracket in a smaller number and a small bracket in large number. So definition is semi-closed interval of A comma B means real numbers from semi-closed interval means real numbers semi-closed interval A comma means real numbers which is greater than or equal to, because I have to involve A, because from A there exists large bracket, so I have to include A but not B. So semi-closed interval A comma B means real numbers which is greater than or equal to A but less than B is called semi closed interval. And what last is open closed interval. Open closed interval symbol is it is open from left side and closed from right side. So students, definition is semi open interval is semi open interval is this symbol is changed from this side. From left side we have applied a small bracket and right side we have to apply large bracket. Now definition is changed. Real numbers which is greater than A but less than or equal to B. This definition is slightly changed. Change क्या है कि A की तरफ से ओपन इंटरवल है, B की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल है, यानी मुझे A को शामिल नहीं करना है, B को शामिल करना है। तो इसका मतलब क्या है कि वे सारी रियल नंबर जो A से बड़ी हो और B से छोटी हो या B के बराबर हो। इसका मतलब क्या है, आपको A इंक्लूड नहीं करना है, B इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब A से बड़ी और B तक की, A से बड़ी और B तक की रियल नंबर्स क्या बनाती हैं?
सेमी ओपन इंटरवल बनाती है। सो स्टूडेंट्स, these are the types of closed interval. These are the types of intervals. These four intervals are also called finite intervals. These four types of intervals are also called finite intervals. So again I have to revise these four types of intervals. So students, suppose करते हैं कि a और b दो रियल नंबर है, a and b are two real numbers. हमने सपोज कर लिया कि a और b दो कैसे नंबर है, रियल नंबर्स है। इस तरीके की रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स मीन चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर में काउंट होगी। लेकिन आपको क्या करना है कि इन दोनों, और आपको याद रखना है कि जो इंटरवल होता है वो दो नंबर के बीच में ही बनता है, दोनों नंबर रियल होनी चाहिए। तो मैंने a और b दो रियल नंबर ले लिए। इस तरीके से कि a हमेशा छोटा होता है किससे, b से। अगर b को छोटा ले लेंगे a से, तो फिर इंटरवल के लेफ्ट में क्या होगा, b, और राइट में क्या होगा, a। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो इंटरवल होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग होता है, मतलब इंटरवल में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ने पर नंबर बढ़ते जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरवल के लेफ्ट में हमेशा छोटी रियल नंबर होगी और राइट में हमेशा बड़ी रियल नंबर होगी। सपोज देन, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें a छोटा नंबर है, b बड़ा नंबर है, तो a रहेगा आगे, b रहेगा पीछे। अगर मैं a में ओपन, अगर मैं कह दूं कि इन दोनों से बनाएंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब a की तरफ भी ओपन इंटरवल, b की तरफ भी ओपन इंटरवल। इसका मतलब ना a शामिल करना है ना b शामिल करना है। दैट इज we have to apply this symbol. This symbol is said to be open interval. इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to R, मतलब हर एक x क्या है, रियल नंबर। और इस तरीके का है कि x, अब इसको समझिए, इसका मतलब है कि ना मुझे a लेना है ना b लेना है, मतलब a से बड़ा b से छोटा, ना मुझे a चाहिए ना मुझे b चाहिए, यानी मुझे a से बड़ा चाहिए, x ग्रेटर है एंड x लेस देन b। अगर मैं इसी को क्लोज्ड इंटरवल बना लूं a कॉमा b, तो अब मुझे a भी चाहिए, मुझे b भी चाहिए, बस क्या होगी, डेफिनेशन सेम होगी। बस मुझे क्या करना है, a भी इंक्लूड करना है, b भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगेगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b। अगर मैं कह दूं कि a को शामिल करना है बट b को शामिल नहीं करना, तो a की तरफ क्लोज, क्योंकि a को शामिल करना है, b को शामिल नहीं करना है, तो b की तरफ क्या, ओपन इंटरवल। तो डेफिनेशन क्या होगी, x such that x belongs to R, क्योंकि मुझे a शामिल करना है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a लगेगा, और b को शामिल नहीं करना है, तो b को शामिल नहीं करना है, तो b में इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा। अगर मैं कह दूं कि मुझे a शामिल करना है लेकिन b शामिल नहीं करना, सॉरी a को शामिल नहीं करना मतलब a को इंक्लूड नहीं करना बट b को करना है, तो अब क्या डेफिनेशन बनेगी, x such that x belongs to R and x is greater than a, क्योंकि मुझे a शामिल नहीं करना है और b को शामिल करना है, लेस देन इक्वल टू b। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इंटरवल्स। दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल। आगे से क्लोज, पीछे से ओपन, इसे बोलेंगे सेमी क्लोज, और जो आगे से ओपन पीछे से क्लोज, इसे बोलेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये चारों इंटरवल्स जो बच्चों होते हैं उन्हें हम फाइनाइट इंटरवल्स भी कहते हैं, और इन सारे इंटरवल्स की लेंथ, इन सारे इंटरवल्स की जो लेंथ होती है वो होती है b माइनस a। b माइनस a मींस बड़ी रियल नंबर में छोटी रियल नंबर को क्या कर दें, माइनस कर दें। अच्छा, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे मैंने कहा आपसे, सपोज आई हैव टू टेक ओपन इंटरवल 6, ओपन इंटरवल 6, मींस मुझे ना 6 शामिल करना है ना मुझे 8 शामिल करना है, तो इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे x such that x belongs to R।
6 से 8 के बीच की रियल नंबर चाहिए। ना मुझे 6 लेना है, ना मुझे 8 लेना है, ना मुझे 6 लेना है, ना मुझे 8 लेना है। ध्यान से देखिए, जिसकी तरफ ओपन इंटरवल का सिंबल हो वो शामिल नहीं करना। तो देखिए 6 में भी ओपन है, 8 में भी ओपन है, तो ना मुझे 6 चाहिए, ना मुझे 8 चाहिए। मुझे 6 से बड़ा चाहिए, 8 से छोटा चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या बनी? x less than x belongs to r, x greater than 6 less than 8। ये सेट की कंडीशन है। अगर कहें इसको ज्योमेट्रिकली शो करो, तो ज्योमेट्रिकली कैसे शो करेंगे? नंबर लाइन खींचेंगे। मुझे चाहिए 6 से 8, तो बस मुझे नंबर लाइन में 6 शो करना है, 8 शो करना है। तो देखिए ये 6 है और ये 8 है, मुझे सिर्फ 6 और 8 चाहिए। अब देखिए जल्दी से, ना मुझे 6 चाहिए, ना मुझे 8 चाहिए। तो ना ही मुझे 6 चाहिए, ना ही मुझे 8 चाहिए। इसका मतलब ये नंबर लाइन यहां से क्या हो गई? ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई मींस 6 की तरफ हम एक सर्कल लगाएंगे, ऐसा सर्कल। लेकिन सर्कल ऐसा होगा कि ये सर्कल अंदर से दिखे। तो ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल, ये ओपन इंटरवल का सर्कल होता है। और अगर इसी सर्कल को मैं डार्क कर दूं तो फिर क्लोज इंटरवल का सर्कल होता है। तो देखिए, ना मुझे 6 चाहिए, ना मुझे 8 चाहिए। तो मुझे 6 में भी खुला सर्कल लगाना है और 8 में भी खुला सर्कल लगाना है, क्योंकि मुझे ना 6 चाहिए, ना मुझे 8 चाहिए। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 8। ये क्या शो करना है? ये सर्कल शो करना है कि ना मुझे 6 लेना है, ना मुझे 8 लेना है। मान लो मुझे 6 लेना होता तो मैं 6 को क्या करता? डार्क कर देता। So this interval represents open interval 6, 8। अगर मैं कह दूं कि मुझे क्लोज्ड इंटरवल 6, 8 शो करना है, 6, 8 मींस सेट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to r. Now means of closed interval we have to include 6 as well as 8. That is x greater than equal to 6. If अगर आपको कभी भी क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, ये सिंबल कॉमन है, ये दो सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, ये दोनों सिंबल तो कॉमन है। अगर जहां पे क्लोज्ड इंटरवल होगा बस उसमें क्या लगाना है? इक्वल टू लगाना है। दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 8। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे शो करेंगे? दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज 6, दिस इज 8। अब देखिए, मुझे 6 भी चाहिए, 8 भी चाहिए। 6 भी शामिल है, 8 भी शामिल है, क्योंकि दोनों में क्या लगा है? क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल तो बहुत ही सिंपल है। 6 में भी आपको डार्क सर्कल करना है, 8 में भी डार्क सर्कल करना है। अगर ओपन होता तो सर्कल को हम क्या करते हैं? ओपन लगाते। सो दिस represents, this portion represents closed interval 6, 8। अगर मैं कह दूं सपोज आई हैव टू टेक सेमी क्लोज्ड इंटरवल 6, 8 means I have to include 6 but not 8. What is the meaning? X such that x belongs to R, x greater than 6, less than 8. But I have to include 6, then at 6 we have to include equal sign. Geometrically form of this interval is we have to draw a number line where 6, this is 6, this is 8. We have to include 6. At 6 we have to apply dark circle, and from 8 we have to apply open circle like this, and between this whole portion represents semi-closed interval 6. Now we have to represent 6, 8. It is open from 6 but closed from 8. Means this is open from left and closed from right. Then a interval which is open from left and closed by right side is called semi-open interval. What is its meaning? Its meaning is x such that x belongs to R, x greater than 6, less than 8. Now we have to apply equal sign into 8 because I have to include 8. So from
from the side of A we have to apply equal symbol. Now geometrical representation of this interval is here is 6, here is 8. I have not to include 6, so at the side of 6 we have to apply open circle, and from side of A we have to apply closed interval. So students, I think you can understand whole topic. But if suppose I have to take x greater than 2, suppose करो मुझे लिखा मिल गया x greater than 2 और किसी ने कह दिया कि इसको इंटरवल बनाओ, x greater than 2 का मतलब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, तो तुरंत आपको नंबर लाइन में देखना है ये 2 है, ये 2 है, ये प्लस इंफिनिटी है और ये माइनस का क्या है इंफिनिटी। तो बताइए 2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2, 2 तो नहीं है, आपको 2 से ज्यादा लेना है, मतलब इसमें 2 शामिल नहीं है, और 2 शामिल नहीं है तो 2 की तरफ कैसा सर्कल खुला वाला, और 2 से ज्यादा का मतलब आगे बढ़े तो कहां से कहां जा रहा है, 2 से ज्यादा और कम कितने से ये नहीं पता मुझे, तो x ग्रेटर देन 2 का इंटरवल क्या होगा, 2 से ज्यादा है ना, ज्यादा है, 2 शामिल नहीं किया तो 2 की तरफ क्या लगेगा ओपन इंटरवल, और कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक, तो ये इंटरवल बना 2 कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि 2 शामिल नहीं है तो ये क्या हो गया 2 कॉमा इंफिनिटी। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कभी कहें x ग्रेटर देन a, x लेस देन a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू a, तो ये चारों तरीके के सिंबल हमेशा कैसे इंटरवल बनाते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल। कहने का मतलब कि अगर x कोई रियल नंबर है, अगर x a से बड़ा है, x a से छोटा है, x a से बड़ा है या इक्वल है, या x a से छोटा है या इक्वल है, तो ये चारों तरीके के जो सिंबल्स हैं वो इनफाइनाइट इंटरवल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि x लेस देन 2 से, अब इसका मींस क्या है कि x एक ऐसा रियल नंबर है जो 2 से छोटा है, तो आप देखिए नंबर लाइन में ये 2 है और 2 से छोटा, कितना छोटा नहीं पता। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि मुझे 2 से बड़ा चीज चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए ये मुझे नहीं पता, 2 से छोटा, 2 शामिल तो है नहीं, शामिल नहीं है तो 2 की तरफ कैसा है सर्कल लगेगा, खुला सर्कल लगेगा, और छोटा कहां था माइनस इंफिनिटी। और इंटरवल की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट, तो देखिए ये जो पोर्शन है इसका लेफ्ट क्या है माइनस इंफिनिटी, और राइट क्या है this is the geometrical representation of x less than 2। अगर मैं कहूं x greater than equal to 2 है, अब इसके मीनिंग क्या है, ये 2 है, अब देखिए इक्वल टू का सिंबल भी लगा है, और इक्वल टू का सिंबल लगा मींस मुझे 2 चाहिए, 2 भी चाहिए, 2 से आगे भी चाहिए, ग्रेटर देन 2 है तो 2 से आगे कितना आगे नहीं पता, तो कहां तक जाएगा इंफिनिटी। और आपको हमेशा याद रखना है इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, इंफिनिटी का मतलब आपको पता नहीं है कि कितना छोटा है कि कितना बड़ा है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका इंटरवल भी क्या बनेगा, 2 से शुरू होगा और कहां तक इंफिनिटी तक, और लेफ्ट टू राइट और दी डायरेक्शन इंटरवल, तो 2 शामिल किया तो 2 की तरफ कैसा क्लोज्ड, और इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। अब मैं कहता हूं मुझे चाहिए x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसकी मीनिंग क्या है, या तो 2 से कम या तो 2 के इक्वल, तो ये 2 है, 2 के इक्वल, इक्वल का सिंबल लगा तो 2 में क्या लगाएंगे डार्क सर्कल, और कम का मतलब पीछे, तो कहां तक जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। तो बताइए इस नंबर लाइन की डायरेक्शन देखिए कितने पोर्शन, लेफ्ट टू राइट देखिए इंटरवल बनेगा माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल, कॉमा कहां तक 2 तक, 2 शामिल करना है तो 2 में क्या क्लोज इंटरवल। सो आपने ये देखा कि अगर कभी भी x ग्रेटर देन a टाइप की चीज मिले, x लेस देन a टाइप का कुछ मिले, x ग्रेटर देन इक्वल टू a टाइप का कुछ मिले, x लेस देन इक्वल टू a टाइप का कुछ भी मिले, और उन्हें क्या बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि सभी में देखिए इनफाइनाइट जरूर आ रहा है,
तो इनको बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। और स्टूडेंट्स इनफाइनाइट इंटरवल की लेंथ हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। वी कांट फाइंड द लेंथ ऑफ इनफाइनाइट इंटरवल। एंड स्टूडेंट्स नाउ set of real number, set of real numbers is minus infinity comma plus infinity। set of real numbers भी क्या होता है? open interval। set of real numbers is also a open interval which is greater than minus infinity and which is less than plus infinity। बहुत सिंपल सी चीज है। आपने नंबर लाइन देखी, नंबर लाइन के बीचों बीच क्या है? जीरो। इस तरफ कहां तक जाते? प्लस इंफिनिटी तक, और ये और ये पूरी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में कहां तक की नंबर आती है? जो माइनस इंफिनिटी से ज्यादा हो और प्लस इंफिनिटी से क्या हो? कम। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है वो ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल में क्या क्या होता है? लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी होता है और राइट में प्लस इंफिनिटी होता है। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दी topics which I taught to you. So students, I will continue this chapter in next class. Thank you. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, मैं पदावली शीर्षक की व्याख्या आज आपको पढ़ूंगी। पदावली शीर्षक जो है वो कबीर दास द्वारा रचित है। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक को निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों, पदावली का जो पहला छंद है वो है, बहुत दिनन है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। बच्चों, अपने पूर्व के वीडियो में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कबीरदास जी ने स्वयं को, यानी आत्मा को जो है दुल्हन के रूप में और परमात्मा को जो है प्रिय या पति के रूप में वर्णित किया है। तो यहाँ पर भी जो है कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता एवं परमात्मा की प्राप्ति के बाद प्राप्त आनंद का क्या किया है? वर्णन किया है। कबीरदास कहते हैं, बहुत दिनन है मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों के पश्चात मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त कर सकी। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कि मैं जीवात्मा बहुत दिनों तक साधना करने के उपरांत अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त कर सकी। भाग बड़े घर बैठे, मैं बड़ी भाग्यशाली जो मैंने घर बैठे भक्ति के मार्ग को अपनाकर ईश्वर को प्राप्त कर लिया। मंगलाचार माहि मन राख, ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर मैंने अपने प्रीतम के आगमन पर पुलकित होकर मन ही मन मंगल गीतों को गाना प्रारंभ कर दिया, या मन ही मन मैं मंगल गीतों को गाने लगी। राम रसायन रसना चाह, और मैंने ईश्वर की प्राप्ति के उपरांत प्राप्त होने वाले आनंद को, रसना माने होता है बच्चों जीवा, मैंने ईश्वर की प्राप्ति के उपरांत प्राप्त होने वाले आनंद को अपनी जीवा से चख लिया। मंदिर मया मानी भया उजिया, मुझे जब अपने प्रीतम की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर का जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वो नष्ट हो गया और मेरा मन ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो गया, ज्ञान के प्रकाश से भर गया। ले सूती अपना पीव पिया, और इस प्रकार मैं जीवात्मा अपने परमात्मा को साथ
भाषा कौन सी है? सदुपरी भाषा। रस, रस बच्चों यहाँ पर होगा संयोग श्रृंगार रस। संयोग, संयोग श्रृंगार रस और शांत रस। और कौन सा रस है बच्चों? शांत रस। फिर इसी बाद बच्चों छंद आता है। छंद जो है वो गेय पद है। कौन सा पद है बच्चों? गेय पद। ये पद जो है क्या किए जा सकते हैं? गाए जा सकते हैं। तो कौन सा छंद होगा यहाँ पर? गेय पद। इसके बाद बच्चों आते हैं अलंकार। तो प्रस्तुत पद में अलंकार में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद बच्चों आती है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति और शब्द शक्ति यहाँ पर है लक्षण। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः इसकी व्याख्या पढ़ा दूँ तो अच्छा रहेगा। तो आप सभी बड़े ध्यान से जो है पदावली के प्रथम पद की व्याख्या बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका क्या किया है? वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिन आराधना करने के उपरांत, साधना करने के उपरांत मैंने परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त कर लिया। भाग बड़े घर बैठे आए। मैं बड़े भाग्यशाली हूँ कि घर बैठे ही साधना करने के कारण मैंने बैठे बैठे ही, घर बैठे ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मंगलाचार माहि मन राख। देखो बच्चों, मंगलाचार माहि मन, यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास होता है। मंगलाचार माहि मन राख। मैंने परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर मन ही मन मंगल के गीतों को गाना प्रारंभ कर दिया। राम रसायन रसना चासु। यहाँ पर भी बच्चों रावण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो आनंद मिला उसको मैंने रसनामन होता है जिह्वा से चख लिया है। मंदिर माहि भया उजियारा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार था वो समाप्त हो गया और चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ले सूती अपना पीर पिया। मैं अपने प्रीतम पति को लेकर, परमात्मा रूपी प्रीतम को लेकर मिलन की अवस्था का सुख भोगने के लिए चिर निद्रा में सो जाऊंगी। मैं रनिरास जीव नहीं पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी जीवात्मा हूँ जिसने परमात्मा रूपी रत्नों के खजाने को प्राप्त कर लिया है। हमें कहाँ यह तुम ही बड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जो मुझे आज इस ईश्वर की प्राप्ति हुई है इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। यह तो परमात्मा की उदारता है, उनका बड़पन है कि उन्होंने पत्नी के रूप में मुझे क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। कहे कबीर मैं कछुना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्माओं, मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं किया, केवल सच्चे मन से उनकी क्या की है? भक्ति की है। सखी सुहाग राम मोहि दिया। हे सखी, ये जो सौभाग्य का समय मेरे जीवन में आया है ये तो परमात्मा की उदारता के कारण ही मुझे प्राप्त हुआ है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम आते हैं पदावली के पद संख्या 2 पर और उसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या को अब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर जो आपसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर व्याख्या में ही क्या रहता
भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबह उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दुई धूनी गिरानी, मोह बनेला टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति कर संतों बांधी, मिर्चे चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल टूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। बच्चों, प्रस्तुत पद में संसार की नश्वरता का, जीवात्मा की अज्ञानता का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है कि संसार क्या है, मोह है, माया है, असत्य है। जो सत्य है वो हमें दिखता नहीं, और जो असत्य है उसे हम क्या समझ लेते हैं, सत्य समझ लेते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो संसार की जो वास्तविकता है वो हमारे समक्ष आ जाती है, और मोह, तृष्णा, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे मन से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, संतों भाई आए ज्ञान की आंधी। हे संतों, सज्जन व्यक्तियों या हे संतों, किसकी आंधी आई, ज्ञान की आंधी आई। ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की टाटे सबे उड़ाए। जिस तरह बच्चों जो है झोपड़े को बनाने के लिए टटियां लगाई जाती, टटियां क्या होती हैं, बांस की खपच्चियों से तैयार की जाती हैं। तो भ्रम की जो पर्दे लगे हुए थे, जो टटियां लगी हुई थी, जब ज्ञान की आंधी आई तो वो टटियां क्या हो गई, उड़ गई। माया रहे न बांधी, वो माया रूपी रस्सी से बांधी गई थी। अब माया रूपी रस्सी से वो बांधी नहीं जा रही थी, बल्कि वो जो भ्रम की टट्टियां थी, पर्दे थे, वो दूर जाकर क्या हो गए, उड़ गए। दुचते की दो धूनी गिरा, जिस तरह छप्पर को छाने के क्या धूनी, धूनी माने होता है स्तंभ, छप्पर को छाने के लिए दो स्तंभ की जरूरत होती है। इसको इस बात से समझने की कि सपोज दैट ये छप्पर है आपका, तो इसको स्तंभ, दो स्तंभों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्तंभ। आया बच्चों समझ में? तो ये जो दो होते हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चों, स्तंभ। ठीक है, तो दो चीते का मतलब होता है मोह और आसक्ति, जो क्या थी, धूनी थी, स्तंभ थे, वो क्या हो गए, गिर गए। मोह बटीला फूटा, और मोह का की जो बल्ली थी, बल्ली इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बल्ली। मोह रूपी जो बल्ली थी वो क्या हो गई, टूट गई। जब ज्ञान की आंधी आई, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो आस पास जो बांस की खपच्चियों की टटियां लगी थी वो उड़ गई, और मोह रूपी रस्सी से जो बांधी गई थी वो बंद नहीं रही थी। द्विचते की दो धूनी ज्ञान, मोह और आसक्ति की दो जो स्तंभ थे वो क्या हो गए, गिर गए, और जो मोह रूपी बल्ली थी वो क्या हो गई, टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, तृष्णा माने होता है तृष्णा, लालच, लालच रूपी जो छप्पर था, लालच रूपी जो छप्पर था वो क्या हो गया, घर के ऊपर गिर गया, कुबुद्धि का भांडा हुआ। और उस घर के अंदर जो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन रखा था, उस घर के अंदर जो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन रखा था वो क्या हो गया, टूट गया, क्या टूट गया। जोग जुगत कर संतों बांधी। इसके बाद जब ज्ञान की आंधी आई और शरीर या सांसारिक मोह माया रूपी जो झोपड़ा था वो ढह गया, तो संतों ने, योग का मतलब होता है योग, और जुगत माने युग, योग और युक्तियों से पुनः उस शरीर रूपी जो झोपड़ा था
जो लोभ, तृष्णा, लालच रूपी क्या था, कूड़ा और करकट था, वो क्या हो गया, निकल गया। हरि की गति जब जानी, हरि माने होता है बच्चों परमात्मा। जब जीवात्मा ने परमात्मा के स्वरूप को जाना तो उसके अंदर लालच, लोभ, ईर्ष्या रूपी जो कूड़ा और करकट था वो क्या हो गया, निकल गया। आंधी पीछे जल लूटा, जो जल लूटा, ज्ञान की आंधी आने के लिए प्रेम रूपी क्या बरसने लगा, जल बरसने लगा। प्रेम हरि जन की, उसमें जो परमात्मा के भक्त थे वो क्या हो गए, भीगने लगे, अर्थात प्रेम के, ईश्वर के प्रेम रूपी जल में निमग्न हो गए। कहीं कबीर भान के प्रगटे, ये दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर भयातम छीना, अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वो नष्ट हो गया। अर्थात ज्ञान के सूर्य के उदित होने पर अज्ञानता का जो अंधकार था वो समाप्त हो गया। बच्चों ये जो ये पद है थोड़ा अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसकी व्याख्या को मैं एक बार पुनः पढ़ाना चाहूँगी, तो आप सभी बहुत ध्यान से इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, हे संतों, गुरु के ज्ञान रूपी क्या आए, आंधी आई। भ्रम की टाटे सवेरे, शरीर रूपी जो झोपड़ा था उसके आसपास जो क्या लगी थी, भ्रम की टटियां लगी थी, पर्दे लगे थे, वो सब क्या हो गए, उड़ गए। माया रही न बांधे, माया रूपी रस्सी से वो फिर बांधे नहीं जा सके। दुचिते की दो धून गिरा, इस शरीर में मोह और आसक्ति रूपी जो स्तंभ थे वो क्या हो गए, गिर गए। मोह बडीला टूटा और मोह रूपी जो बल्ली थी वो आधी आने पर टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, तृष्णा लालच रूपी जो छप्पर छाया हुआ था शरीर रूपी झोपड़े में वो क्या हो गया, घर के ऊपर टूटकर गिर गया। और उसके गिरने पर कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो दुर्बुद्धि रूपी अंदर क्या रखा था, बर्तन रखा था, वो फूट गया। जुग जुगत कर संतों दास कहते हैं कि संतों ने योग की युक्तियों से पुनः उस शरीर रूपी झोपड़े को सुव्यवस्थित किया, बांधा। निर्जय जुए न मान, अब उस पर सांसारिक मोह माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कूड़ कपट काया का निक्सा, काया मतलब शरीर, ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने पर जो शरीर रूपी झोपड़ा था उसके अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, लालच रूपी कूड़ा भरा हुआ था वो निकल गया। हर की गति जब जानी, जब शरीर रूपी या जीवात्मा ने परमात्मा की स्थिति को या परमात्मा की गति को जब जाना, आंधी पीछे जो जल लूटा, आंधी के चले जाने पर जो प्रेम रूपी जल बरसा, प्रेम हरि जन घिना, तो हर के अर्थात ईश्वर के जो भक्त थे उस प्रेम रूपी जल से भीग गए या सराबोर हो गए। कहीं कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर, उदित भयातम छीना, उदित होने पर जो अज्ञानता रूपी, तब माने होता है अंधकार, जो अज्ञानता रूपी अंधकार था, छीना माने छीन हो गया, अर्थात नष्ट हो गया। बच्चों ये जो पद संख्या पदावली के अंतर्गत पद संख्या 2 की व्याख्या मैंने पढ़ाई, इसमें भी बच्चों आप भाषा कौन सी पढ़ रहे हैं, सदुपयोगी भाषा। रस जो है यहाँ पर केवल कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस। कौन सा रस हुआ,
Welcome student, welcome to a new session of a class 11 and the subject is biology, and in this subject we will discuss here the first chapter living world. सबसे पहले हम आपको लिविंग वर्ड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है बायोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाएगी कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो प्लस दूसरा जो है वो लोगस। लोगस बायोस मीन्स होता है लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगस टर्म अगर कहीं भी लगा है तो उसका मतलब होगा, लोगस टर्म जो कहीं भी लगा है तो उसका मतलब होगा स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। What is biology? It is a branch of a science that deals with the study of living organism is called biology. बायोलॉजी की ये जो ब्रांच है ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला जूलॉजी, जूलॉजी एंड सेकंड इज बोटैनिक। The meaning of zoology, the meaning of zoo, the word zoology having is made up of two words. First is zoo and second one is logos. So the meaning of zoo is, zoo का अर्थ होता है जंतु। zoo का अर्थ क्या होता है? जंतु। logos means होता है स्टडी। तो जंतुओं का अध्ययन करना जूलॉजी के अंतर्गत आता है और वनस्पतियों का अध्ययन करना बॉटनी के अंतर्गत आता है। तो बायोलॉजी की दो ब्रांचें होती हैं, पहली जूलॉजी होती है, दूसरी बॉटनी होती है। जूलॉजी जो है, जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी की ये दो ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बायोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। लिविंग ऑर्गेनिम्स की जीवित जंतुओं का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लांट भी जीवित होते हैं और एनिमल्स भी जीवित होते हैं। तो दोनों जो है अलग अलग कैटेगरी में इनका अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ अर्थात जीवन का अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवन क्या होता है। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या होता है? देखिए किसी भी चीज को हम जीवित जब ही कह सकते हैं जब उसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर इसके अंदर एक लिविंग लिक्विड भरा रहता है। इस लिविंग लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये क्या है? एक तरीके का लिविंग सब्सटेंस है। ये क्या है? एक तरीके का लिविंग सब्सटेंस है। जिस सेल के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा उसको हम लिविंग सेल कहेंगे और जिसके अंदर नहीं पाया जाता ये बता दो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते। तो लाइफ क्या होती है? लाइफ वह होती है जिसके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म सब्सटेंस भरा होता है। किसी भी ऐसी वस्तु के अंदर, किसी भी ऐसी चीज के अंदर जिसमें लिविंग पदार्थ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसी को हम कह सकते हैं कि वो जीवित है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स की, यानी कि जो जीवित जंतु होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बात की जाएगी। जो जीवित जंतु होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और एक एक विशेषताओं को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहली जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ हिंदी में इसको हम वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ क्या है? मान लीजिए कहने का मतलब है जो भी लिविंग वस्तु है वो ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने का मतलब क्या है? अगर एक मल्टी सेलुलर कोशिका है या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर जंतु है, बहुकोशिकीय जंतु है अगर, तो वो बहुकोशिकीय जंतु वृद्धि कैसे करता है? वो अपनी कोशिकाओं की क्या करता है? अपने कोशिकाओं की नंबर को इंक्रीज करता है और नंबर को इंक्रीज करके वो क्या करता है? ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। यूनिसेलुलर कोशिकाएं क्या करती हैं? ये भी रिप्रोडक्शन करके अर्थात जनन करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाती हैं। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी ये बताते हैं आपको कि ग्रोथ क्या है। देखिए किसी भी वस्तु के अंदर अगर
उसके ड्राई वेट में इंक्रीज कर रहा है, उसका ड्राई वेट इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी ग्रोथ हो रही है। और अगर उसका ड्राई वेट इंक्रीज नहीं कर रहा है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। लिविंग ऑर्गेन्स में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेन्स में क्या होता है, पर्टिकुलर उसका वेट इंक्रीज करता रहता है, उसी को हम कहते हैं कि ये वृद्धि कर रहा है, यानी कि वेट इंक्रीज करना ही वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उत्पन्न होता है कि वृद्धि जो होती है क्या लिविंग ऑर्गेन्स में ही होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में वृद्धि नहीं होती? नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में भी वृद्धि होती है, लेकिन देखिए क्या अंतर होता है, मैं एक एग्जांपल के द्वारा इसको बताऊंगा आपको कि नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में कैसे ग्रोथ होती है। इसके लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हैं। एक कांच का ग्लास ले लीजिए, उस कांच के ग्लास में आप पानी भर दीजिए और उसमें एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा 3 से 4 घंटे बाद वो लकड़ी का जो टुकड़ा होगा उसका जो है वेट इंक्रीज कर गया होगा। तो वेट इंक्रीज कर गया होगा, तो इसका मतलब उसने ग्रोथ की, उसने वेट को गेन किया, तो मतलब जो है इसका मतलब फिर वो क्या हुआ, वो तो उसमें लिविंग कैरेक्टर है, या तो फिर हम उसको लिविंग कैसे कहेंगे और नॉन लिविंग कैसे कहेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ग्रोथ का मतलब होता है वेट में इंक्रीज होना, और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनमें भी वेट में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है, जो वेट इंक्रीज करता है, वो इंटरनल होता है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं उनका जो वेट इंक्रीज करता है वो एक्सटर्नल होता है। कहने का मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा था, लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जब पानी की बूंदें आकर के जमा हो गई और ये जो एड्जॉर्प्शन हो गया, और एड्जॉर्प्शन होने की वजह से ये पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई इसकी सरफेस के ऊपर, इसीलिए इसका क्या मास इंक्रीज कर गया, तो हम कहेंगे कि ये ग्रोथ हो गई। बट ये ग्रोथ देखिए नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट नहीं होती, जो लिविंग ऑर्गेन्स में ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेन्स है, अब ये पानी के जो लकड़ी का टुकड़ा हमने ग्लास में डाला था, ये फूल करके कैसा हो गया, बड़ा हो गया, इसके वेट में भी इंक्रीज हो गई, उसके शेप और साइज में भी इंक्रीमेंट हो गई। लेकिन अगर हम इसको फिर दोबारा से वापस पानी से बाहर निकाल करके रख दें तो ये वापस अपना वही शेप और वही वेट गेन करने का जो इसका ऑलरेडी था। तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉट अ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। ये कैसी है, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में ये होता है कि जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है, और वो ग्रोथ जो है परमानेंट रहती है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, परमानेंट नहीं होती। लकड़ी का टुकड़ा वापस उसी पोजीशन पे आ गया और उसी वेट पे आ गया जैसा कि ये पहले था। तो इससे हम ये कहेंगे कि नॉन लिविंग में वेट तो इंक्रीज होता है लेकिन वो परमानेंट नहीं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई लिविंग ऑर्गेन्स की, कि लिविंग ऑर्गेन्स ग्रोथ करता है, उसके मास में इंक्रीमेंट होता है, और उसके मास में जो इंक्रीमेंट होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में भी ग्रोथ होती है लेकिन वो परमानेंट ग्रोथ नहीं होती। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। दूसरी बात है रिप्रोडक्शन की। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसलिए हम ग्रोथ को ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ, मतलब ये एक विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहलाई जा सकती, विशेष प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहलाई जा सकती कि लिविंग बींग्स में ग्रोथ होती, क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स में भी ग्रोथ हो रही है, जो भी हो रही है भले वो टेम्परेरी के लिए हो रही है, लेकिन इसको हम इसीलिए ग्रोथ को हम जो है एक विशिष्ट लक्षण, एक जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स नहीं कह सकते। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन से आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेन्स जो है अपने जीवन चक्र में अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को उत्पन्न करता है, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेन जो सिंगल सेल के बने होते हैं, ये जो है बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोड्यूस करके क्या करते हैं, अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ भी हो रहा है, एक तरीके से ग्रोथ भी है। ये एक सेल थी, एक सेल से इतनी सारी सेल्स बन गई, तो ये ग्रोथ भी हो गई सेल। ठीक है, और रिप्रोडक्शन भी क्या है, इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हम ये दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लिविंग ऑर्गेन्स की जो नॉन लिविंग मतलब जो है नॉन लिविंग मतलब ये जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है इसमें ग्रोथ भी होती है, और
ग्रोथ में रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन में ग्रोथ होता है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के अल्टरनेट होती रहती हैं। तो हम इसमें एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर देखिए एक सिंगल सेल थी, डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बना ली, तो हम इसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और यहाँ पर हम इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। ये सिंगल सेल का ऑर्गेन्स था। मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स में क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स में क्या करते हैं, अपने सेल के नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं। इनकी बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो डिवाइड होकर नई कोशिका बनाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, लिविंग बींग्स की, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, वो अपनी जनरेशन बनाते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो ये तो हो गई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन। तीसरी है मेटाबॉलिज्म, उपापचय हिंदी में इसको बोलते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो एक जीवित कोशिका के अंदर होती है। तो मेटाबॉलिज्म वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये पर्टिकुलर उन्हीं चीज़, मेटाबॉलिज्म उसी चीज़ में होगी जो लिविंग होगा। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लिविंग ऑर्गेन्स की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक और सबसे पक्की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है कि उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो किसी सेल के अंदर होती है, क्योंकि कोई सेल अपने आप को जीवित रखने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू आती है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, मेटाबॉलिज्म इज मेड अप ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना और एना मीन्स होता है फॉर्मेशन होना। तो ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। इट मीन्स दैट कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। इसको मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, और इस क्रिया के अंतर्गत क्या बोलते, कोशिका को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये याद रखिए, ये प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं चौथी कैरेक्टरिस्टिक की, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं चेतना। ये जीवित जंतुओं की ये भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम चेतना बोलते हैं, और ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए, क्योंकि इसमें होता क्या है, कोई भी लिविंग सेल जो होती है वो अपने बाहरी एटमॉस्फेयर से हमेशा रिएक्शन करती है, अर्थात कहने का मतलब स्टिमुलेट होती है। अगर वातावरण जो है, वातावरण जो बाहरी वातावरण हमको स्टिमुलेशन देता है, उसके प्रति हम क्या करते हैं, उसके प्रति हम क्रिया करते हैं, उसके प्रति हम क्रिया करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चेतना। और चेतना की जो पावर होती है वो किसमें होती है, लिविंग ऑर्गेन्स में ही होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में ये पावर नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी लिविंग सेल होगी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होगी, स्टिमुलेट होगी, प्रेरित होगी, और जब वो प्रेरित होगी तो कोई ना कोई रिएक्शन करेगी। उसी रिएक्शन, और वो रिएक्शन क्यों कर रही है, क्योंकि उसके पास चेतना है, इसलिए वो रिएक्शन कर रही है। अगर वो रिएक्शन नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो चेतना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं उनको क्या, उसमें क्या होती है, उसमें चेतना पाई जाती है। इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं। मान लीजिए अगर कोई मनुष्य जो है वो कॉमा की अवस्था में आ गया, कॉमा की अवस्था में आ गया तो ना तो वो हिल डुल सकता है, बस केवल रेस्पिरेशन कर सकता है। बाहर से उसको हम एनर्जी देने के लिए इंग्रेडिएंट्स वगैरह देते रहते हैं, उसको जीवित रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो कॉमा की अवस्था में आ गए तो कॉमा में आया हुआ कोई भी मनुष्य या कोई भी जंतु जो है, क्या वो लिविंग कहलाता है, वो लिविंग नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा इस बात को कि जो कॉमा में आया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है, वो रिएक्शन नहीं कर सकता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इसलिए हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे। ये बात याद रखिएगा, वो डेड ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वो डेड ही बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लिविंग बींग्स की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। दिस इज ऑल ओवर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।